بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اپنی بچیوں کو وہاں بھیج دوں گی تو ستیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ سلوک تو یہاں پر بھی ان کے ساتھ اچھا نہ ہوتا، مگر یہاں اماں ابا کا آسرا تھا، ان کی ماں یہاں موجود تھی۔ میں اپنی بچیوں کو ہر سرد و گرم سے بچانا جانتی تھی، میں ان کے لیے محنت کر سکتی تھی، لہذا میں نے ان کو ان کے باپ کے پاس نہ بھیجا اور اپنے شوہر اور سسرال والوں سے تمام امیدیں ختم کر دیں۔ میں اماں ابا اور اپنی بچیوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ بھابھی کا بس چلتا تو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اسی وقت گھر سے نکال دیتی۔ وہ تو نہ جانے اماں ابا کو ہی گھر میں کیسے برداشت کر رہی تھی، مگر اماں ابا اور بھائی کے ڈر سے خاموش رہی۔ مگر اس کا رویہ زہر کر دیا کرتا کہ اس کو ہمارا یہاں رہنا پسند نہ تھا۔ مجھے بھی اس کی زیادہ پرواہ نہ تھی، اماں ابا کا ساتھ تھا اور مجھے کیا ضرورت تھی۔ میں پڑھی لکھی تھی، لہذا میں نوکری کے لیے باہر نکل کھڑی ہوئی اور اپنی بچیوں کی تربیت کرنے لگی۔ مجھے ایک پرائیویٹ سکول میں نوکری مل گئی۔ میں نے اپنی بچیوں کو بھی اس سکول میں داخل کروا دیا۔ میں اور بچیاں صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتی اور میں چھٹی کے وقت اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ لے آیا کرتی۔ اماں ابا کے ساتھ کی وجہ سے مجھے بہت حوصلہ تھا، حالات ٹھیک ٹھیکر پر چل رہے تھے۔ شوہر کے گھر میں بھی میری کون سی حیثیت تھی، لہذا مجھے یہاں پر ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ میری بچیاں بھی سنبھل گئیں۔ میں اپنی بچیوں کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتی، مگر بھابھی سے میری بچیوں کی ہنسی برداشت نہ ہوتی۔ گھر میں ہم جب بھی کوئی بات چیت کرتے یا ہنستے تو وہ تنتناتی ہوئی آ جاتی اور بلا وجہ لڑائی شروع کر دیتی۔ اس کی ابھی تک اولاد نہ تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے بچیوں کے ساتھ برداشت نہ کرتی۔ اب اگر اس کی اولاد نہ ہوئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیر تھی۔ وہ چاہتی تو میری بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی تھی، اپنی اولاد کی ممتا بھی پوری کر سکتی تھی، مگر وہ میری بچیوں کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ لیتی۔ میں چپ چاپ سا برداشت کر لیتی، آخر زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا ہی تھا۔ میں اور بچیاں تھک ہار کر گھر آتے تو اماں نے سارا کام نپٹا کر رکھا ہوتا۔ میں اماں کو منع بھی کرتی کہ میں خود آ کر کام کر لوں گی، مگر اماں نہ مانتی۔ وہ بچیوں کے کپڑے وغیرہ تک دھو کر رکھ دیا کرتے، جبکہ ابا بچیوں کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے اور جو بھی چیز انہیں کھانی ہوتی باہر سے لا کر دیا کرتے۔ میرے ماں باپ کا مجھے بڑا ہی آسرا تھا۔ میری بڑی بیٹی 12 سال جبکہ چھوٹی بیٹی 10 سال کی ہو گئی تھی۔ شوہر سے علیحدہ ہوئے پورے 9 سال گزر گئے تھے۔ ان 9 سالوں میں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، اچھے حالات بھی دیکھے تھے، لیکن وہ ماں باپ کی زندگی تک ہی تھے۔ اماں ابا کی موت کے بعد میں بالکل ہی اکیلی پڑ گئی تھی۔ بھائی کا تو ویسے ہی آسرا تھا، بس اس کے گھر کی چھت استعمال کر رہی تھی، جبکہ میں نے اپنا کھانا پکانا بھی علیحدہ کر لیا تھا۔ میں نوکری سے جو کچھ کما کر لاتی، اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ اٹھاتی۔ بھابھی کو پھر بھی میرے یہاں رہنے سے تکلیف تھی۔ اس کو اس بات پر اعتراض تھا کہ میں اس کے گھر میں کیوں رہ رہی ہوں، حالانکہ اس گھر میں میرا بھی حصہ تھا، مگر یہ بات میں نے بھابھی سے کبھی کہہ نہ پائی۔ وہ ہر وقت میرے بچوں کے پیچھے پڑی رہتی اور بچیوں کو ڈانٹتی ڈپتی رہتی۔ اس کے سامنے میری بچیاں سہم کر رہ جاتی۔ میری کوشش تھی کہ میں اپنا کہیں الگ گھر کر لوں، مگر آج تک حالات نے اتنا ساتھ نہ دیا تھا۔ میں جس پرائیویٹ سکول میں کام کرتی تھی وہ بند ہو چکا تھا، جبکہ میں نے دوسرے سکول میں نوکری حاصل کی تھی، لیکن اس سکول کے بھی حالات زیادہ اچھے نہ تھے، نہ ہی تنخواہ زیادہ تھی۔ کچھ عرصے میں یہ سکول بھی بند ہو گیا۔ مالک کو زیادہ منافع نہ ہو رہا تھا، لہذا اس نے سکول بند کرنا ہی بہتر جانا۔ میں بے روزگار ہو گئی تو مجھے صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی۔ حالات بدترین ہو چکے تھے۔ میں نے باقی سکولوں میں درخواست دے دی تھی، مگر ابھی تک کہیں سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا۔ میری نوکری گئے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ پچھلے مہینے کی تنخواہ پوری خرچ ہو چکی تھی۔ اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں اپنے گھر میں بچیوں کے کھانے کے لیے کچھ خرید لاؤں۔ میں نے بھابھی سے کچھ پیسے ادھار مانگے تو اس نے صاف منع کر دیا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرا تو اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ تم دیکھ ہی رہی ہو کہ مہنگائی کس حد تک بڑھ گئی ہے، ایسے میں روز بروز تمہیں ادھار کیسے دیتا رہوں؟ بھائی کے جواب پر مجھے زیادہ حیرانی نہ ہوئی، مجھے اس سے پہلے ہی کچھ اچھے کی امید نہ تھی، لہذا میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ جب اپنوں کا یہ حال تھا تو کسی غیر سے احسان لینے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ آج صبح سے میری بچیاں بھوکی تھیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔
भाभी ने पूरे मोहल्ले में न्याज की बिरयानी बांटी थी। बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। मेरी बच्चियां भी मेरी तरह सब्र शुक्र का पैकर थीं। वो मुंह से एक बात भी ना निकालती, मगर उनके चेहरे पर रकम तहरीर थी कि वो बिरयानी की खुशबू से बेचैन हैं, बिरयानी खाना चाहती हैं। मुझे उम्मीद थी कि भाभी मोहल्ले में न्याज बांटते हुए अपनी नंद और इसकी बच्चियों का ख्याल ज़रूर रखेगी। मगर शाम तक भाभी की तरफ से बिरयानी ना आई तो मैं खुद ही बावर्ची खाने में चली गई और अपनी बच्चियों के लिए ना चाहते हुए भी बिरयानी मांग बैठी। अभी मैं बांट रही हूँ, अगर बचेगी तो दे दूंगी, भाभी नखुवत से बोली। तो मैं चुपचाप वापस पलट आई। भाभी की तरफ से बिरयानी आने की उम्मीद ही रही। उसने एक प्लेट भी बिरयानी ना भिजवाई थी, बल्कि बची हुई बिरयानी फ्रिज में रख कर ताला लगा दिया था। अगर वो बिरयानी मेरी बच्चियों के मुंह में चली जाती तो पापी का क्या जाता, मगर उसके दिन पर जो गरूर और गुस्सा सवार था उसका कोई इलाज न था। मैं सिवाय सब्र के और क्या कर सकती थी। बच्चियां भूख से रोने लगी। उन्होंने सारा दिन कुछ न खाया था। मेरे पास ऐसा कुछ न था जो मैं उनको खिला देती। मैं बेहद बेचैन थी। बेचैनी से पापी के बावर्ची खाने में जा पहुंची कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। मैंने तमाम बर्तन उलट पलट कर देख लिए, मगर बची हुई हड्डियों के सिवा कुछ न था। मैंने कचरे के डब्बे से हड्डियां निकाली और लाकर बच्चियों के सामने डाल दी। मेरी बच्चियां हड्डियों पर टूट पड़ी और इनमें लगी हुई बोटियां खाने लगी, जबकि मैं आंसू बहाने बैठ गई। मेरा दिल फटने लगा। मुझे कुछ न समझ आ रहा था। मैं खुदा से शिकवा करने लगी कि इसने मुझे इस हालत में अकेला कैसे छोड़ दिया। मैं इस काबिल भी ना थी कि अपनी बच्चियों को 2 वक्त का खाना खिला देती। मेरे साथ सभी लोगों ने गलत किया था। मेरे शौहर के बाद भाई भाभी ने भी मेरा साथ न दिया। मैं जाए नमाज बिछा कर बैठ गई। जाए नमाज पर बैठते ही मैं हिचकियों के साथ रोने लगी। रोते रोते सजदे में गिर गई। मेरे आंसू थमने का नाम ना लेते थे। मैं आज बेहद बेचैन थी। मेरी बच्चियां हड्डियां खाकर सो चुकी थीं। उनके मासूम चेहरों पर नजर पड़ते ही मेरे रोने की शिद्दत में इजाफा हो जाता। मैंने सारी रात रब की इबादत में ही गुजार दी। फजर की अजान सुनाई दी तो मैं फजर की नमाज की नियत बांध ली। मैंने जो ही सजदे से सर उठाया, दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं चौंक गई। इतनी सवेरे कौन आ गया? मैं हैरान होती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ी। भाई भाभी अभी सो रहे थे। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने अपने शौहर को खड़े देखकर मैं हैरान रह गई। मैं साकत नजरों से उसे देख रही थी, जबकि वो शर्मसार सा खड़ा था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? वो धीमे लहजे में बोला। तो मैं चुपचाप एक जानिब हो गई। वो ढीले कदमों से अंदर चला आया और सेहन में चारपाई पर बैठ गया। उसके हाथ में बड़े बड़े शापर भी थे जो मुख्तलिफ चीजों से भरे हुए थे। मेरी बच्चियां कहाँ हैं? उसने शापर जमीन पर रखते हुए इधर उधर देखते हुए अपनी बच्चियों की बाबत दरियाफ्त किया। उसने शापर जमीन पर रखते हुए इधर उधर देखते हुए अपनी बच्चियों की बाबत दरियाफ्त किया। अंदर सो रही हैं, मैंने धीमे लहजे में जवाब दिया। मैं बेहद हैरान थी। मुझे उसकी यूं अचानक आमद की बिल्कुल तवक्को न थी। हम दोनों एक दूसरे के सामने चुपचाप कितनी देर बैठे रहे। मेरे पास तुमसे माफ़ी मांगने की हिम्मत है ना अल्फाज। मैं इस काबिल ही नहीं कि मुझे माफ़ किया जा सके। मैंने तुम्हारे और अपनी बच्चियों के साथ बहुत गलत काम किया। काश मुझे इस वक्त इतनी अकल होती, मगर तब मैं जवानी के नशे में सरशार था। मैं अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाली निदा को पसंद करने लगा था और उसके इश्क में पागल था। मगर अम्मा चाहती थी कि वो अपने ख़ानदान की लड़की को बहू बना कर लाएं। मैंने उनको निदा से मिलवाया तो वो उन्हें ख़ास पसंद ना आई और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तो उनसे तय कर दिया। मैं इस शादी के लिए राज़ी न था, मगर अम्मा का इकलौता बेटा होने की हैसियत से मुझे अम्मा की बात माननी पड़ी। अगर अपनी मर्जी से शादी कर लेता तो अम्मा पर क्या गुजरती? वो अपने अरमान किस पर पूरे करती? बस यही सोचकर मैंने तुमसे शादी की हामी भर दी। अम्मा तुम्हें बड़े अरमानों से रुखसत करके ले आई थी, मगर मेरा दिल तुम्हारी तरफ मैल न था। मैंने अम्मा को साफ बता दिया था, मगर अम्मा का कहना था कि निकाह के बोलों में बड़ी ताकत होती है, तेरा दिल खुद ब खुद मान जाएगा। मैंने तुमसे बेइतनाई बरती तो बदले में तुम मुझसे दूर होती गई।
तुमने खुद मेरे करीब आने की कोशिश ना की। अब्बा की वफात से अम्मा के दिल में ये बात बैठ गई कि तुम्हारे कदम इस कार में मनहूस साबित हुए। मैंने अम्मा की इसी तोहम परस्ती का फ़ायदा उठाया और अम्मा को तुम्हारे खिलाफ करता गया। मैं अम्मा को तुम्हारी शिकायत लगाता कि तुम मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और उनका दिल तुम्हारी तरफ से मैला करता रहता। मैंने अम्मा को यहाँ तक कह दिया कि तुम किसी और को चाहती थी और तुम्हारे माँ बाप ने ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी मुझसे कर दी। अम्मा ने भी तुम्हारी बेगानगी नोटिस की, लिहाजा उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से शादी करने की इजाज़त दे दी और मैं निदा को ब्याह कर घर ले आया। मैं निदा से शादी करके बहुत खुश था। मैंने अपनी मोहब्बत पा ली थी, मगर मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा भी था। मेरे दिल में एक बेचैनी सी थी कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम्हें आज़ाद कर दूं ताकि तुम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सको। मैं बच्चियों को अपने पास रखना चाहता था, मगर मुझे अंदाज़ा था कि मैं इनका वैसा ख्याल ना रख पाऊंगा जैसा तुम रख सकोगी। मैं उनको सौतेली माँ के रहम करम पर भी नहीं छोड़ सकता था। अम्मा का ख्याल दुरुस्त निकला था। निदा इस तरीके से घर को ना संभाल पाई जैसा तुमने संभाला था। उसको बस घूमने फिरने और सजने संवरने का शौक था। उसने घर का बेहद बुरा हाल करके रख दिया। अम्मा दब्बे लफ्ज़ों में मुझसे शिकवा करती, मगर मैं निदा को क्या कहता। वो तो मेरी मोहब्बत थी। मैं निदा की हर बात मान लिया करता। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटों से नवाजा तो मैं अपनी पहली बच्चियों को भी भूलता गया। बेटों के बाद मेरे और निदा के झगड़े शुरू हो गए क्योंकि वो जिम्मेदारियों से घबरा गई थी। उसका कहना था उससे इतना काम नहीं होता। अम्मा बीमार थीं। मैं उनको कामों में लगे देखता तो मैं निदा से झगड़ने लगता। अम्मा की वफात पर मैं बहुत दुखी था। अभी मैं अम्मा की मौत के सदमे से ना संभल पाया था कि मेरी बीवी और दोनों बेटे स्कूल से आते हुए गाड़ी की टक्कर से हादसे का शिकार हो गए। मेरी बीवी मौका पर ही दम तोड़ गई। वो बेटों को बचाते हुए खुद गाड़ी की सद में आ गई। मेरे बेटों को मामूली चोटें आईं। मेरे बच्चे माँ के बगैर बिल्कुल टूट गए हैं। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि माँ बाप के बगैर बच्चों को पालना किस कदर मुश्किल है। माँ और बाप दोनों ही बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। तुमने किस तरह मेरी बच्चियों को अकेले संभाला, मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मेरा दिल मज़ीद बोझल हो गया। मैंने तुम्हारे वालिद को बच्चियों के लिए खर्ची भेजने की बात की थी, मगर तब उन्होंने गुस्से में इनकार कर दिया था। फिर मैं भी अपनी ज़िंदगी में इतना मस्त हो गया कि मुझे इस बात का एहसास ही ना हुआ कि मेरी बच्चियां किस मुश्किल से गुजर रही होंगी। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ घर चलो। मैं इन गुजरे सालों की तकलीफ़ तो कम नहीं कर सकता, मगर वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं तुम्हें और अपनी बेटियों को किसी किस्म की कोई कमी ना होने दूंगा। मैं अपने बेटों की परवरिश के लिए तीसरी शादी भी कर सकता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि कोई भी औरत अपनी औलाद जैसा प्यार ना दे सकेगी सिवाय तुम्हारे। मुझे तुम्हारी फितरत का अच्छी तरह अंदाज़ा है। मैंने और माँ ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, उसके बावजूद भी मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे बेटों को अपना लोगी। अजमल की आंखें आंसुओं से भरी थीं, जबकि मैं कुछ भी बोलने के काबिल ना थी। मेरी बच्चियां भी आंखें मलती हुई कमरे से बाहर निकल आई थीं। वो हैरान नज़रों से अपने बाप की जानिब देख रही थीं। ये तुम्हारे बाबा हैं। मैंने उंगली से इनके बाप की जानिब इशारा करके उनकी हैरानी कम करने की कोशिश की, मगर उनकी आंखें हैरत से मज़ीद फैल गईं। अजमल फौरन अपनी बच्चियों की तरफ बढ़ा और रोते हुए उन्हें अपने साथ लगा लिया। वो बच्चियों के लिए ढेरों खाने पीने की चीज़ें लाया था। बच्चियां कुछ ही देर में उससे घुल मिल गईं। वो मज़े से अपने बाप की लाई हुई चीज़ें खाते हुए बेफिक्री से कहके लगा रही थी। खुशी इनके चेहरों से आया थी। मैंने आज से पहले हमेशा इनके चेहरों पर खौफ ही देखा था। भाई भाभी भी कुछ देर में जाग गए। वो अजमल को देखकर हैरान थे। मैंने अभी तक अजमल की किसी बात का कोई जवाब ना दिया था। मेरे पास शिकवों की लंबी फहरिस्त थी। अजमल ने अपनी कहानी तो सुना दी थी, मगर मेरी कहानी सुनने के लिए एक बार भी ना कहा था। उसका ज़मीर उसे मुलामत करता था, तभी वो अपने ज़मीर को मुतमईन करने चला आया था। फैसला तो तय था। मुझे अपनी बच्चियों की खातिर वापस जाना था, मगर उनको पेट भर खाने के साथ बाप का प्यार भी मुयस्सर होता। अजमल को देखते ही भाभी के मिजाज फौरन बदल गए थे। वो जल्दी से नाश्ता बनाने बावर्ची खाने में घुस गई। कुछ ही देर में उसकी मुलाजमें चली आईं तो उन्होंने नाश्ता मेज़ पर लगा दिया।
میں بابی کے رویے پر حیران ہوتی ناشتے پر ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ میں کل صبح سے بھوکی تھی۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے مجھے ایک موقع دو گی؟ اجمل نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا تو میں اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے منہ سے بے اختیار اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور میں اپنا اور اپنی بچیوں کا سامان سمیٹنے اندر کی جانب بڑھ گئی۔